Good morning, friends. Thank you for joining this course after seeing my introductory video on basics of statistics using R. So today we will have a little bit introduction of R, and I will now go in the mode where I will be presenting some slides and I will be coming back and forth in the moment. Okay, let's begin. So what's the prerequisite of the course? Just an eager and open mind and little bit understanding mathematics. So don't worry if you don't know maths or stats too much. As I told you in introductory video, the requirement of the field is not that much from learning point of view, but from application point of view it is very high. So आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है. आप ये मत सोचिएगा कि आपको गणित नहीं आता है और संगणक चलाना नहीं आता है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, तो आप इसको आराम से इनरोल कीजिए और सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको स्टैटिस्टिक्स की डेटा की आपको आगे मिलेगी. अब ये दिस इज द एजेंडा ऑफ द स्लाइड्स विच यू कैन सी. सो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, उसका मीनिंग, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द नेचर, इसके क्या इस्तेमाल हैं, क्या इसके विषमताएं हैं, अन्य चीज़ें, बाकी चीज़ें हम बताएंगे. ओके, नाउ मैनी पीपल इन द यूनिवर्सिटी मस्ट हैव सीन देयर इज अ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट. सो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है, दोनों में अंतर होता है और इसका अंतर बड़ा मूलभूत है. सो एज वी कैन सी इन द स्लाइड इटसेल्फ, abstract versus applied. Mathematics is more abstract. Abstract means conceptualization, like what is negative number. अगर आपसे पूछूं -2 क्या होता है, -2 सेब दो मुझे, तो ये -2 सेब आपको समझ में नहीं आएगा. You won't understand what is the -2 apple. So it's a concept. Okay. So mathematics is generally even application, theory development side, abstract side. Statistics is more applied. So statistics cannot exist without maths. But statistics is applied science like engineering and science. जैसे पहले साइंस होता है और इंजीनियरिंग होता है, साइंस की थ्योरी इंजीनियरिंग में लगाई जाती हैं, उसी तरह. ठीक है, मैथमेटिक्स इज मोर थ्योरेटिकल. न्यू कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग. यूलर नंबर, व्हाट इज यूलर नंबर, एंड व्हाट इज रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, और व्हाट इज लेट्स से होल नंबर, व्हाट इज रैशनल रेशियो नंबर, etc. Okay. The statistics relies more on tools. So tools is like जो आपके tools होंगे, आप देखेंगे बहुत सारे techniques, softwares, they will help you in applying statistics. Okay, as compared to mathematics, softwares might help you write it, but ultimately it is you who have to do calculation, everything. And finally, ultimately agenda of statistics is to make decisions. क्या करना है? That's all. Now we will go further. More formal. This is the source B1. B1 is a book 1 reference which I have mentioned in the reference. Reference की list में B1 का नाम लिखा हुआ है. So it is a science which provide tools for analysis and interpretation, both thing, analysis और interpretation. Okay. So उसका आंकलन और उसका क्या कहना चाहिए, interpretation को आप बोलेंगे मतलब एक conclusion देने का, समझ देने का नतीजा. Of a raw data. Raw data means डेटा विच इज़ अवेलेबल टू द 5 सेंसेस. तो मैं सांख्या में नहीं जा रहा हूँ. डेटा हमारे, आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो भी रोबोट्स काम करते हैं, एवरीबडी इज इंटरैक्टिंग विद डेटा. सो वीडियो डेटा, ऑडियो डेटा, विजुअल डेटा, ओके, ऑरल डेटा, वॉट एवर इट इज. सो डेटा है हर चीज़ में. ठीक है, टेक्निकली वी विल डिस्कस इट मोर. 4 चीज़ें होती हैं: पॉपुलेशन, सैम्पल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक. We will discuss it more. This is more technical language. Okay. And finally, collection of data, classification of data, tabulation of facts. Ultimately एक description के लिए एक आपके पास image होगी या फिर एक output होगा जिस पर आप phenomena समझाएंगे. Okay. So statistics generally science for analysis and interpretation of raw data. As simple as that. Okay. Now it is qualitative data, quantitative data, which sort of data, that is different. But raw data. Okay, please understand that. Where it is applied or how it is applied, इसका nature कैसा है. Why it is important to understand the nature? Because if you don't understand the nature of it, इसकी जो इसकी क्या कहना चाहिए attributes समझ में जाएंगे, इसका विवरण नहीं समझेंगे, तो application करने में बड़ी कठिनाई होती है. हम उसमें एक धारणा बना लेते हैं, भाई ये तो बहुत पता नहीं कौन सी ऊपर से कोई चीज़ आई है जिसको हम नहीं कर सकते. ठीक है, तो जो भी चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व का मतलब सिर्फ आँखों से नहीं होता है. ऑब्ज़र्व मतलब आप जिसका इनपुट ले सकते हैं,
जिसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और जिसके बाद डिटेल बता सकते हैं। जैसे IQ है, अगर मैं बोलूँ IQ आपका IQ क्या है, तो IQ जब तक आप एक टेस्ट नहीं लेंगे तो आपसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। सो भले ही आपने उसकी मेधा शक्ति का आपने वो देखा, क्या कहते हैं, एलैबोरेशन देखा, उसका कारनामा देखा, लेकिन कौन कितना बुद्धिमान है जब तक उसका हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, एक नंबर या फिर एक क्वांटिटी नहीं देंगे, तब तक उसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बेसिस पे सिर्फ नंबर ही नहीं है, इसका अर्थ भी दिया जाता है। जैसे अगर हम कहेंगे द स्पीड ऑफ द कार इज 20 किलोमीटर पर आवर, तो दिस नंबर 20 किलोमीटर पर आवर हैज़ अ बिग मीनिंग। सो किलोमीटर पर आवर विच मीन्स एक घंटे में, जिसमें 60 मिनट होते हैं, ये गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है एवरेज स्पीड से। सो दिस 20 इज जस्ट नॉट अ नंबर, इट्स अ बिग फिनोमिना। ओके, it helps in interpretation and prediction decision making. Now this is a very main thing of the statistics. Why everybody is looking for data and everything is to understand, समझें। आप कैसे समझते हैं किसी को भी, आप देखिए, उसे आप ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में कुछ आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आप कुछ कंसेप्ट लगाते हैं और अज्यूम करते हैं ये तो ऐसा होगा। भाई हमने देखा था कि शांत लोग जो हैं चुप बैठे रहते, अपना काम से काम रखते हैं, ये भी वैसा ही है तो ये भी शांत होगा। ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेटा है आपका, और जिस पे आपने इन्फ्रेंस भी लगा दी है आपके पास रिकॉर्डिंग से। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। हमें बस ये नहीं देना है कि हाँ भाई मीन इज 3, एवरेज इज 5 और एवरेज इज 3, अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.2। नंबर्स इज फाइन, बट उन नंबर्स का क्या अर्थ है, उस अर्थ के बिना कोई फायदा नहीं है। आपने कोविड के टाइम्स में देखा होगा, भले ही हम आंकड़े कह ले 48,000 46,000 ऐसे केसेस आ रहे थे, लेकिन उन आंकड़ों को हम कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, वो बड़ा अनिवार्य था। तो सिर्फ नंबरों का ही खेल नहीं है यहाँ पर। इंटरप्रिटेशन, प्रिडिक्शन। ना व्हाट इज प्रिडिक्शन? प्रिडिक्शन इज assuming some things will remain constant, only some things will change, which we will talk in again what are the variables. So कुछ चीज़ें कांस्टेंट है, कुछ चीज़ चेंज हो रही है, उस चीज़ें अगर ये ऐसी चेंज होंगी तो आगे जाके जो हम जिसको पढ़ना चाह रहे हैं वो क्या होगा। तो प्रेडिक्शन में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन लोग कहते हैं 100 करोड़ 40 लाख कुछ है, और ऐसे ही गति से बढ़ती रही तो ये आके 200 करोड़ या कुछ हो जाएगी इस साल तक। अब इसका मतलब ये ऐसे ही चलती रही में, देखिए दो मतलब हैं। ऐसे ही चलती रही मतलब आपने कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखी हैं कि भाई कोई भूकंप नहीं आया होगा या फिर कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं आई होगी, और ऐसे ही अगर चलता रहा तो हम 200, और उसके बेस पे हम लोग प्लानिंग अभी से करते हैं। ये नहीं कहते हैं अरे देखा जाएगा अभी किसने कहा है। तो प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उस सब प्रेडिक्शन के बाद डिसीजन। हमें से प्रिडिक्ट नहीं करना है दैट ओके 200, तो उसका अभी क्या अभिप्राय है, व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रिडिक्शन राइट नाउ, व्हाट इज दैट वी हैव टू डू राइट नाउ which will make use of this prediction. So please understand, this is statistics. Statistics is not just finding values and values and values and giving the answer is this. This is not statistics. This is part of statistics, okay, which people get stuck on. हम बस 1 जमा 2, 2 जमा 3, 2 दुना 3 ये सब करते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है जब तक उसको आप रियल लाइफ में नहीं लगाएंगे। जैसे बहुत से बच्चों को नेगेटिव नंबर्स पता हैं लेकिन नेगेटिव नंबर्स ज़िंदगी में नहीं लगाते हैं, तो वो लोग उस कंसेप्ट को ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। और अल्टीमेटली जो बहुत ही बड़ी चीज़ है, इट फैसिलिटेट्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक इंक्वायरी? आई विल नॉट गो इन फिलोसफी। साइंटिफिक इंक्वायरी इज प्राइमरली एन इंक्वायरी विच इज़ ऑब्जेक्टिव। नाउ इस पर बहुत विश्लेषण हो सकता है कि साइंटिफिक इंक्वायरी क्या होती है, एक पूरी नई फील्ड है, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, ये सब बातें करती हैं। बस साइंटिफिक इंक्वायरी ये होता है कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, चाहे आप करें या कोई और करे, उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए, क्योंकि जिसको पढ़ा जा रहा है वो सेम है। नाउ आई विल नॉट गो इन डिटेल, बट इट फैसिलिटेट्स अकम्प्लिशमेंट। जिसको ज़्यादा जानना है वो इस किताब से पढ़ सकता है। नाउ हाउ डू वी यूज इट, और
what are the various types of use which are generally found. So समझ लीजिए आपको पॉपुलेशन पढ़नी है पूरे इंडिया की कि भैया इंडियंस कैसे हैं, तो आप पूरे इंडियंस को तो पढ़ेंगे, सारे इंडियंस को पढ़ेंगे नहीं, आप कुछ इंडियंस ले लेंगे 1000, 2000, 1500, 5 लाख, 6 लाख. सो एक साइज जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फिक्सिंग द साइज. सो यू ड्रॉ अ साइज and those basis you study. So statistics helps you to understand कि अगर पूरे इंडिया को पढ़ना है तो किन हज़ार को लेना है, किन लाख को लेना है. ऐसे नहीं किसी को भी आपने यूपी के आपने 50 लोग 1 लाख लोग ले लिए और पढ़ लिया और कह दिया ये पूरा भारत है. ये सत्य नहीं है, लेकिन एक तरीका है, आप कह सकते हैं कि हाँ इन अनुमानों के बाद हम कह सकते हैं ये लोग भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं. फिर जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, क्रिकेट में क्या होता है, नंबर्स. वो क्या है, वो एक समरी चार्ट है. सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड है 18,000 कुछ रन, 400 वनडे. ओके, सबका एवरेज आता है, एवरेज मोर देन 40, एवरेज मोर देन 50. तो इट इज एक्चुअली समराइजिंग जो उसका पूरा क्रिकेट जर्नी है, उसका पूरा एक संक्षेप में विवरण दिया है, जिसे हम कहते हैं समराइजिंग और डिस्क्राइबिंग द डेटा कलेक्टेड. अब ये डेटा रन्स का हो सकता है, ये डेटा किसी का भी हो सकता है. जैसे माई आई साइट इज -3.5 बायोप्टर. अब इसका मतलब क्या है, एक बायोप्टर एक यूनिट, डायोप्टर एक यूनिट है जो आपके ऑप्टिक्स में यूज होती है. तो -3.5 इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन हैज मायोपिया ऑफ दिस मच मैग्नीट्यूड. ओके, देन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जर्व डेटा. नाउ समराइजिंग is just what you've observed. Summarizing is nothing more than that. आप उससे inference निकाल सकते हैं, ठीक है, but we have to also understand जब उसमें डेटा में जाएंगे कि what else can be done on this. आपने रन्स निकाल लिए, आपने इनिंग्स निकाल ली, अब आप उसका एवरेज स्कोर निकालेंगे, आप उसमें से नंबर ऑफ सिक्सेस निकालेंगे, नंबर ऑफ फोर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ डक्स निकालेंगे. क्रिकेट में ऐसा होता है. सो किस तरह के डेटा का हम किस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा, 2 कंट्रीज, 2 पीपल, 2 यूनिट्स कंपेयर कर सकते हैं. भाई इस इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, यूएस की पॉपुलेशन इतनी है, 1.4 से बहुत कम है, लेस देन 1 बिलियन है. सो क्या मतलब है. सो इट गिव्स अ नंबर, गिव्स यू एबिलिटी टू कंपेयर. स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स यू टू कंपेयर ऑल्सो. And comparison is just on numbers, could be multiple things, and that is why all these indexes, how much is the package of this college is giving more package, ये better है, खत्म. और NRF rankings हो गई. So all these numbers exist, okay. And finally, which is very important, certain aspects of behavior. Psychometric sciences कह लीजिए, psychology कह लीजिए, psychiatrist कह लीजिए, they work on these lines. If I am eagerness to study, ये एक कंसेप्ट है. अब इसको आप कैसे अंकों में बयान करेंगे कि इतने सारे लोग हैं, इसमें ये कम ईगर है, ये ज़्यादा ईगर है. अब कौन सा कितना कम ईगर है, कितना ज़्यादा ईगर है, इसको भी स्टडी करने में हमको सहायता मिलती है जब हम स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं. जैसे अगर मैं गुस्सा हूँ, मान लीजिए अगर मैं गुस्सा हूँ, तो गुस्से का एक इंडिकेशन होता है कि भाई कितनी बार उनकी भकुटी या आईब्रो ऊपर गई. तो आप अगर लेक्चर में देखते हैं कि 1 घंटे के लेक्चर में इन्होंने 5 बार भकुटी ऊपर करी और किसी ने 3 बार भकुटी ऊपर करी, तो भैया जिनके 3 बार कम हुई है, कम गुस्सा हुए हैं, 5 बार हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं. ये अनुमान है कि भकुटी ऊपर होना गुस्से का वो है, चिन्ह है. लेकिन ये अनुमानों पे भी एक बहुत बड़ा वो चलता है, डिबेट चलता है कि क्या अनुमान है. ऐसे कोई बोलेगा नहीं, गुस्से का अगर मेजर करना है तो आप यहाँ पर लगा दीजिए ब्लड प्रेशर मशीन, प्रेशर राइज होगा, ब्लड प्रेशर राइज होगा, कुछ वैसा होगा. सो वो सब सांकेतिक चीज़ें होती हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी. लेकिन सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, नॉट ऑल एस्पेक्ट्स, कैन बी प्रेडिक्टेड. एंड बिहेवियर साइंस करके एक कंप्लीट फील्ड एग्जिस्ट करती है. हमारी किताबों में मैं आपको नाम दिखाऊंगा, उसमें बिहेवियर साइंस आता है. सोशल साइंस करके फील्ड एग्जिस्ट करती है. तो इन चीज़ों में जहाँ पर सिर्फ रन्स या क्वांटिटी चीज़ें कि कितने पेन हैं, कितने लीटर पानी है, ये सब चीज़ों के बजाय जो आपके बिहेवियर है, आपके एटीट्यूड है, वो सभी मेजर करने का प्रयत्न होता है. हालांकि इस बेसिक कोर्स में हम उसमें नहीं जाने वाले, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल इस तरह से होता है. तो प्राइमरली
इसको अगर हम समराइज करें तो दिस हेल्प्स इन कंपेयरिंग और डिस्क्राइबिंग और समराइजिंग, ठीक है। इसलिए मैं दो शब्द लिखे, समराइजिंग एंड कंपेयरिंग, कॉमा कंपेयरिंग, ओके। नेक्स्ट, which is more important as we discussed in the earlier thing, prediction. एक फिनोमिना हो रहा, अभी तक हमने सिर्फ एक फिनोमिना की बात करी कि भाई दिस इज एंगर, दिस इज व्हाट वी से IQ। अब क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज कॉजिंग दिस, लाइक इफ आई से पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, ओके, देन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। तो उसमें हम जाएंगे न्यूक्लियर फैमिली है, या पर उसमें जाएंगे कि भाई is nuclear family, no, it is education also, it is amount of land they have. So when we try to understand just a phenomena and its antecedents, जिसको हम determinants भी कहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, तो एक चीज़ की वजह से एक चीज़ क्या है, what is it, उसके antecedents क्या हैं और उसके consequences क्या हैं, उसकी वजह से क्या होता है और वो किस कारण से होता है। तो इन चीज़ों की वजह से, जैसे मुझे अगर अपना वेट कम करना है, मैं मोटा हूँ मान लीजिए 84 kgs, अब ये वेट कैसे कम होगा, तो इस पर स्टडीज़ होंगी कि भाई हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इतनी कैलोरी खाने से कम वेट हो जाता है, या फिर आप इस तरह का खाना खाएंगे तो वेट कम हो जाएगा, या फिर एक्सरसाइज करने से वेट कम हो जाएगा। सो अभी तक जो पिछली स्लाइड थी वो समराइजिंग जो फिनोमिना को हम देख रहे हैं उसी के बारे में थी, और वैसा ही कुछ कंपेयर करने के लिए। लेकिन ये स्लाइड है कि और कुछ भी हो सकता है क्या, दो फिनोमिना जैसे बरसात हुई तो सर्दी जुकाम हुआ, तो क्या ये दोनों रिलेटेड हैं? आइडियली आप लोग कहेंगे हाँ, लेकिन सिर्फ देखने से नहीं, ऑब्जर्वेशन करके करना। हो सकता है क्योंकि वो बरसात की वजह से ना हुआ हो, वहाँ पर लाइट चली जाती हो, लाइट चली जाती हो तो कोई और कठिनाई हो जाती है जिसकी वजह से छींक आती है उनको। हम ये नहीं कह रहे क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कोई सिंपल फिनोमिना हम सिर्फ नहीं पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में। डिस्क्रिप्शन इज फाइन, बट असली एजेंडा इज फाइंड द कॉजेशन, जिसको मैंने लाइस्ट में लिखा हुआ है, कॉजेशन, एसोसिएशन एंड प्रेडिक्शन। ये तीन चीजें आपको करनी होती हैं। स्टैटिस्टिक्स का मेन यूज ये है, और इसी के ऊपर कॉजेशन, एसोसिएशन, प्रेडिक्शन के ऊपर पूरी बाकी सारी फील्ड्स भी बनी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट रिसर्च, एजुकेशन प्रॉब्लम, साइंटिफिक रिसर्च, स्टॉक मार्केट, ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, the third point is assessing the probability of results occurring by chance. Now, whenever some phenomena happen, if you see in many universities, there is a course called probability and statistics. So probability and statistics क्यों combine है? क्योंकि the value that it will be, I will get 90%. I am not 100% of sure that I will get 90%. I am sure 50%, 60%, 70%. So likelihood of the event happening, that is a probability. So सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स नहीं होती, नंबर नहीं होते, प्रोबेबिलिटी भी होती है। वी विल नॉट डिस्कस दैट, बट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू दैट दिस ऑल्सो हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग, ओके। सिमिलरली सारे डिसीजंस हमारे सही नहीं होते, कितने चांसेस हैं गलती के, वी विल गो इन डेप्थ ऑफ दिस, बट मोटा मोटा दो चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। पहली स्लाइड जो दिखाई थी, समराइजिंग एंड कंपेयरिंग, डिस्क्राइबिंग एन इवेंट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको, और दूसरा कॉजेशन, एसोसिएशन और प्रेडिक्शन, आइदर ऑफ दीज थ्री थिंग्स. These four things summarizes the uses of stats. Now what is the phenomena, what is the context, that will change, ठीक है. As we know, it's a scientific inquiry. कोई भी scientific inquiry किसी भी limitation के बिना नहीं exist करती. So coming to the limitations, every science has limitation, every research method has limitations. Statistics do not study qualitative phenomena. We have mentioned, पहले बताया था, certain aspects of behavior can be measured, not all. Things like happiness, samriddhi, purity, these are difficult to measure. Statistics do not study individual. This is a very important thing, please understand. When I say per capita income of India is this, I don't know what's the value, you might be knowing it better. That does not mean everybody is getting that. Statistics एक अकेले आदमी की बात नहीं करता. The average height in India is maybe 5 feet. That does not mean everybody is 5 feet. Okay. So it does not cover individuals. So never ever stereotype on the basis of statistics. This is very important. Generalization is possible,
stereotyping is not, okay, and these are not exact laws. As we will see, statistics research में आप देखेंगे बहुत सारी limitations इसके अलावा भी आती हैं, सब इन्हीं के derivatives हैं. They are not laws that okay, I found today that X causes Y with 30% weightage and it will stay like that forever. No, it will change. Okay, it cannot be applied indiscriminately, as I told you, because it is generalization, not individualization. Hence you have to understand the context. किस context में, इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, they are very good businessmen and they don't have too much statistical background. They don't do data analytics, they just observe and apply, because in that context they understand. So please understand, statistics is not to replace your intuitive thinking. Now we will not go in that why intuition is not that important, sometimes why it is important, different between intuition and informed decision making, that's a different topic. But what I am trying to say that the limitation का मतलब ये नहीं है कि त्रुटियां, limitation मतलब कुछ कमियां हैं. Statistical does not mean causal relationship. Okay, this is very important. इसको हम बाद में बताएंगे that x can cause y और y can cause x. Now इसमें से कौन सा क्या है, until unless you apply your common logic, common theory, you won't understand. And statistics are liable to be misused, and I will tell you how and which we need to be aware of. Okay. So as we come to misuse, extremely small or biased sample. So if I want to say that my teaching is very effective, so how will I prove effectiveness? That average score of people is high. Now suppose I am teaching 500 people. Now if I just take sample of 50 or 20 people and those selectively, I am saying, I selectively selected them in the sense that मैंने toppers को select किया, उनका score लिया, अब उनका score तो ज़्यादा आएगा. So this is called bias sampling. ठीक है. So to prove that, everybody agrees I cannot take data large number, but you take very small or biased sample, and on the basis of that you try to prove your theories. So in behavior finance or behavior theories, you will go for types of biases. This is one sort of bias, okay, where you have a belief and you try to fix the find the sample, or you do not know, आपको जो 20 लोग मिले आपने उठा लिया, पता लगा आपके 20 लोग वही थे जो आपके टॉपर्स थे. ठीक है. Unexpected comparison, again this is very important, that suppose average IQ from somebody from tier 1 tier 2 is let's say 80, and suppose you found that average IQ in tier means metros is around 90 or something, or 100 maybe, and then you say city wale अच्छे होते. No, it may be possible because the city people are more educated, they are more thinking, so they are liable to crack that test as compared to tier 1 person. So therefore it can cause unexpected comparisons. Now misleading graphs in presentations, this is called malintention. We manipulate, sometimes we misuse graphs, we misuse data. I will not go in this detail, unethical that much, but yeah, those things are possible and are seen. Therefore you have to understand that these are the limitation of statistics when used very heavily for data analysis and informed decision making. Okay, so when you do a statistics project or something, or statistics data, these are the some sort of fallacies which might happen. If you don't understand, it's not a problem. I am just mentioning them as an introduction to the course, that these are the things which you need to understand. Though in this basic course our focus will not on the fallacies, our focus will be more on the usage of the tools. Everything should be first used, learned, and also then there comes the limitation. हम पहले गाड़ी चलाने को सीखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि भाई गाड़ी अगर ढंग से नहीं चलाई तो पेट्रोल गाड़ी फट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, और पहले ही सोच लेंगे गाड़ी से एक्सीडेंट होगा या गाड़ी फट सकती है, कुछ हो सकता है, हम गाड़ी सीखेंगे नहीं. So first you will learn how to use it, and then later, and in the course fallacies we will keep on discussing them, but right now that is not the focus. Okay, these are the references I was talking about. As you can see, the first book, Statistics for Behavioral and Social Sciences, I did mention the term behavioral sciences, that is very important.
these are the books. Second book is also very simple, is using R, statistics using R analysis. This does not contain too much theory of statistics. The first book contains the theory, the second book contains more of stats and R. Okay. The third book, that is very important, Miles and Field. This is a very prominent book discovering statistics using R. Okay. So, you can, a little typo is there, I will modify the slide. And last one also, how to use R in statistics using in real world problems, that we can see. Okay. And let us go live and meet you in next session. Thank you very much.